Jai Shri Ram everyone. I am Sanskriti Thakur, daughter of Sri Kuldev Kumar and Srimati Soma Devi. I am currently studying in Sant Valugeshwar Bharati Vidya Mandir Senior Secondary School Dadwada in 8th standard. I have been studying there for past 5 years and I have learned a lot from there. I started my journey from 3rd class. I came here from Sadhrota and then started to focus on my studies. After that, I'm now currently studying in 8th class and I have a lot of fun. I have just completed my final exams and the new session has been started from 3rd April and Monday now there were some guests who came in our school and appreciated students with the gratitude and I'm very happy that I study in school and everything is going very well. In our school there are many functions celebrated in school. Most of them are Republic Day, Independence Day and Annual Day. On Republic Day and Annual Day, our team or school team go for scout in the Bilawar High Secondary and there is games performed in our school. They are outdoor games, not indoor, like kabaddi, kho-kho, etc. etc. On Republic Day, I also participate in Republic Day, but in games. The scout team also go to Bilawar High Secondary and try their best to win the medal. And on annual day there are a lot of students participate. I also participate. I participate in yoga. There are a lot of students in yoga and I also try my best to teach them how to do it perfectly. They all give their best for the performance. There are a lot of performances are also done there, like dancing, singing, dogri song, etc. I also participated in that in yoga. And one more important thing, in annual day, the school authority gives us prize for every student, like best scout, best guide, best NCT candidate, best yoga achiever, best karate girl, best karate boy, etc. I love traveling. Me and my family just try their best to find time for traveling. I also have a big sister who is in Navodaya, but when she came, all our family go for traveling. Last time we went to Khajar in Himachal Pradesh, Dalhousie. It was very wonderful here. There were trees all around the ground. There is a big ground and a small pond in it. There were fishes also. We enjoyed a lot and we ate Maggie, which was very special, very good. Ice creams, momos, lot of things we ate. It was in 5th standard maybe. It was International Yoga Day. I was sitting in the lobby and TV was on. I saw that a girl, she was doing split. I wondered how can she do it?
how did she did this, and a lot of question in my mind. But after one day, I normally just searched about stretching on phone, and then I saw it was very wonderful to see her. I also then I try started my yoga practice day very hard. I wonder why she did this very perfectly, and a lot of things, very struggle, very pain, and very after like 1 month I got my splits. I was very happy that I'm able to do that, and after that I also wondered there must not be only one thing, there are a lot of things. Then I searched about it, researched, then learned back bend, and day by day practice I perfected it. And on when I was in ending of 5th standard, you can say in 6th, there were competitions in my school. I don't know, but my friend Sanvi Mahajan, she told me that there are competition in school. I also participated it and got second prize. She was first on that time. She got first, and there was a local tournament, and after that, district, state, and nationals. And when they finished, I came back rested. So many fun, and a lot of championships tournaments were also happening. And after that, past 2 years I completed their national, and in this year I also my daily routine, I mostly wake up at 6 or 6:30 a.m. in the morning, and then I brush my teeth and take bath. After bath, I wear my school uniform and do puja, and I also go to temple almost every day. And when I came back, I do my hair and then eat breakfast and go to school. In school, we have a prayer or vandana like at 9 a.m. every morning in summers. And after that, there is half hour of vandana in our school. After that, the first period is in 9:30 a.m. First period is of our English, which is taught by our Sumi ma'am, and second is of Hindi. Teacher who taught us is Valika ma'am, and third period is our games, which is in by Maninder sir. We play mostly we play kabaddi, or we play kabaddi on that time. And the fourth period is of science, which is of Monica ma'am. After science period, we have our lunch break. We go to we wash our hand, eat lunch, and talk with our friends. And then after that, the lunch break is over. Next period is sixth, which is of maths. Seventh is of SST, and last but not the least is of computer or GK. And after that, the school is over at 3 p.m. जय श्री राम। मेरा नाम सविता शर्मा, मैं प्रधानाचार्य संत बाल योगेश्वर भारती विद्या मंदिर डडवाड़ा। आज मुझे ये बताते बहुत खुशी हो रही है कि हमारी लड़की संस्कृति ठाकुर, जो कि 7th क्लास में है, वो ग्रैंड फिनाले पहुंच चुकी है और इसने 4 राउंड क्लियर किए हैं योगा में। संस्कृति हमारे बच्चा जो है वो बाकी योगा नेशनल लेवल तक जा चुकी है और वहां से अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी है। हमारा स्कूल जो है विद्या भारती का स्कूल है और विद्या भारती में हमारे 36 विद्यालय JNK में है। हमारे विद्या भारती के स्कूल में यह विशेषता है कि हम संस्कारों के साथ साथ बच्चों को विद्या प्राप्त करवाते हैं। हमारे बच्चों का जो विद्या आरंभ संस्कार करवाया जाता है और तिलक के साथ इनके दिन की शुरुआत की जाती है। बच्चों को संस्कार एवं करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज और हमारा जो एकेडमिक्स का है उसमें अच्छा करवाया जाता है बच्चों को। अब मैं पेरेंट्स और अपने मैनेजमेंट और अपने टीचर्स को बधाई देना चाहती हूँ कि हमारा जो बच्चा है ये आगे जाए और सबका नाम रोशन करे। संस्कृति ठाकुर ने 7th क्लास में 91
100% अंक लेकर 8th क्लास में आ चुकी है। अभी उसका ग्रैंड फिनाले है, किसमें कितना है दम में, उसका ग्रैंड फिनाले है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो वहाँ पे भी अपने माँ बाप का, हमारे स्कूल का और हमारे इस एरिया बिलावर का नाम रोशन करे, फाइनल जीत के आए। जय श्री राम। मैं चंद्रभूषण संत बाल जोगेश्वर भारतीय विद्या मंदिर डरवाड़ा का अध्यक्ष बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट का। हमारी जो बिटिया संस्कृति ठाकुर है 7th क्लास में पढ़ती है। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी है और उसने 7th में 91% नंबर लिए हैं। वो जो हमारा योगा का ग्रैंड फिनाले हो रहा है वो उसके लिए सिलेक्ट हुई है। उसने 4 राउंड पहले पास कर चुकी है। अब हम चाहते हैं कि वो आगे जाए और जो इसका फाइनल है ग्रैंड फिनाले का वो जीत के आए। मैं उनके माता पिता जी को और अपने स्कूल के टीचरों को, मैनेजमेंट को भी शुभकामनाएं देता हूं कि जैसे हमारा विद्यालय बाकी एक्टिविटियों में साथ साथ हर तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट चाहता है, तो उसमें ये बच्ची हमारी योगा में जा रही है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि ये जो हमारा बच्ची हमारी ग्रैंड फिनाले में जा रही है वो फाइनल जीत के आए। इस बच्ची ने किसमें कितना है दम योगा में पार्टिसिपेट किया है। 4 राउंड क्लियर करके वो फाइनल में पहुंची है। हम आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जो आगे फाइनल में जा रही है उसमें वो टॉप जीत के आए। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं अंग्रेज सिंह भारतीय विद्या मंदिर डरवाड़ा में मंत्री के दायित्व मेरे पास है। ऐसे मैं योगा से रिलेटेड हूँ। मैं पतंजलि योग समिति बिलावर का अध्यक्ष भी हूँ और स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में हमने योग सीखा है और सुबह से लेकर शाम तक यही लोगों को प्रयास में रहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं और बुजुर्ग जो हैं, माताएं बहनें जितने भी हैं, सभी स्वस्थ रहें, उसके लिए दिन रात प्रयास रहता है। तो हमारी बच्ची संस्कृति ठाकुर 7th क्लास में पढ़ती है और 7th क्लास में 91% मार्क्स जो है वो सिक्योर किए हैं। उसके लिए भी इसको बधाई है। इसमें कितना है दम, उसमें 4 राउंड इसने जीत चुकी हैं और अब फाइनल में उसमें प्रवेश कर रही हैं। तो मैं इनके पेरेंट्स को, इनके टीचर्स को और जो हमारा इसमें नेशनल कंपटीशन में भाग लिया था उसमें भी ये नेशनल खेल के आई है, वो भी हमारे माध्यम से नेशनल कंपटीशन जीत के आई है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये आगे जो फाइनल कंपटीशन हो रहा है इसमें भी अपने स्कूल का नाम, अपने माता पिता का नाम और हमारे बिलावर एरिया का नाम जो है वो रोशन करे। इसको बहुत बहुत बधाई देते हैं। Jai Shri Ram. I am Sumi Thakur, teacher of Sant Bal Bharatiya Vidya Mandir Senior Secondary School, Dadwara. Sanskriti Thakur, a student of class 8th, is a brilliant student of our school. She is a hardworking student who always secures good marks in her academics, and she always helps other students also in their class, and she grabs everything very quickly, and all we can say that she is a sweet and a kind girl who is so sweet that she's always ready to help others, and she also secures 3rd position in her previous class. She participated in the different yoga competitions and also represented our school at the national level, and she also cleared all the rounds of Kisme Kitna Hai Dum, and now she had reached the grand finale. We pray that she also win the final round, and so we can say that she is the student of a school who has make so proud and to us also, and also her parents. So all the best to her. जय श्री राम। मेरा नाम प्रज्ञा भारती है। मैं आचार्य हूँ संत बाल जोगेश्वर भारतीय विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल डडवाड़ा। हमारी एक स्टूडेंट संस्कृति ठाकुर, उन्होंने किसमें कितना दम एक टीवी शो है उसमें योगा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें वो काफ़ी आगे तक गए हैं, ग्रैंड फिनाले राउंड में पहुँचे हैं वो। तो अगर उस संस्कृति के बिहेवियर की मैं बात करूं तो क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, एंड इन द फील्ड ऑफ योगा तो उसने काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल के, इवन 2 बार वो नेशनल लेवल पे भी गए हैं। रिसेंटली दिसंबर में भी अभी नेशनल लेवल पे उन्होंने इसी योगा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और 10th पोजीशन जो थी ऑल ओवर इंडिया में हासिल की थी। तो ये एक हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट है। और किसमें कितना है दम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके 4 राउंड्स जो हैं वो विन कर चुके हैं ऑलरेडी। फाइनल राउंड में वो जीत के आए, उसके लिए उनको ऑल द बेस्ट। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मैं विलेज सुद्रोता का रहने वाला हूँ और मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, टीचर हूँ और मेरी 3 बेटियाँ और एक बेटा है। बड़ी बेटी नवोदय में पढ़ती है और दूसरी लड़की जो है वो
भारतीय विद्या मंदिर डडवाड़ा में पढ़ती है 8th स्टैंडर्ड में। और थर्ड लड़की जो जिसका नाम निहारिका ठाकुर है वो भी 3rd स्टैंडर्ड में भारतीय विद्या मंदिर डडवाड़ा में पढ़ती है। और चौथा लड़का है मेरा, उसका नाम है वेदांश सिंह सुद्रहान, जो कि हमारे साथ में रहता है, स्कूल में मम्मा के साथ जाता है। और मेरी घरवाली है वो भी टीचर है। संस्कृति को बचपन से ही योगा का शौक था और इसको कई बार मैंने बोला पूछा भी है कि इसको योगा करने से मतलब बोलना पापा जी आप भी किया करो योगा। योगा से कई से बहुत सारी बीमारियां हैं जो ख़त्म हो जाती हैं। इसको स्टार्टिंग से ही शौक था। जब 3rd में जहाँ पे पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी ये मेरे स्कूल में ही, उसके बाद जिद करने लगी कि मैंने नीचे बिलावर में कुछ अच्छे स्कूल में पढ़ना है, तो इसको बाल योगेश्वर स्कूल में डाला गया। और उस तरह से कभी कभी जी टीवी में देखते रही ये योगा जागा वगैरह देखती रही, तो उससे एक दिन इसका ये सपना हो गया मैंने योगा, पापा जी मैंने योगा करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, योगा की अच्छी एक्टिविटी है जो कि हर बीमारी ख़त्म कर सकती है। इसने योगा में हिस्सा लिया और स्कूल वालों ने भी इनकी हेल्प की और ये डिस्ट्रिक्ट का और 2 बार नेशनल गा के आई है। और मुझे अपनी लड़की पे बहुत बड़ा गर्व है ये आगे हर साल इस स्कूल में 1st और 3rd आ रही है 2-3 साल से। और मुझे इस पर पूरा गर्व है कि ये मेरा नाम रोशन करेगी, अपने मम्मा और पापा और अपनी पूरी फैमिली का नाम रोशन करेगी। और मुझे इस पर पूरा गर्व है कि ये एक दिन कुछ न कुछ बनेगी। खाना वाना खुद बना लेती है और कपड़े भी साफ खुद कर देती है। क्योंकि हम हफ्ते बाद स्कूल से वापस आते हैं ड्यूटी से, तो ये अपना काम घर का पूरा ये खुद करती है। साथ में छोटी बहन है इसकी निहारिका ठाकुर, जो कि उसको भी अच्छे से पढ़ाती है। और मैं तो ना ही इसने कोई ट्यूशन किया है, जो उसको ज़रूरत पड़ती है वो ऑनलाइन देख लेती है फ़ोन से या टीवी में। हमने वो उसको वाईफाई लगा के दिया है, वो खुद वहाँ से जो भी मटेरियल चाहिए वहाँ से खुद कर लेती है वो तैयार। और ना ही ट्यूशन वगैरह पढ़ती है। छोटी लड़की को भी खुद पढ़ाती है और छोटे भैया का भी कभी आते उसका भी ध्यान रखती है। मेरी लड़की को योगा करने के बहुत शौक है। जब भी इसको थक जाती है तो जब भी इसको टाइम मिलता है तो योगा करती है, जो कि घर के अंदर में कर लेती है और कोठे पे कर लेती है, कभी होता है कुछ बाहर भी कर लेती है। जी मेरी लड़की संस्कृति ठाकुर जो है, जो जब ये पैदा हुई तो हमने 6 महीने इसको गोद में पाला। सभी गोद में पालते मगर पूरी रात जब रात को जो पूरी रात रोती रहती थी और सुबह जो आती थी सो जाती थी। हमने बारी में कभी मैंने 6 घंटे मैंने जागे रहना और 6 घंटे मेरी इसकी मम्मा ने जागे रहना, जो कि इसको पूरी रात रोती रहती थी। उसको 1 साल हमने इसको ऐसे तड़पाया मुझे हमको कि हम सोचने लगे कि हमको क्या भगवान ने क्या दे दिया जो कि ये लड़की रोती रहती है। फिर भी हमने हार नहीं मानी। लास्ट में 1 साल के बाद फिर आस्ता इसकी डेवलप हुई। और साथ में जब 1st 2nd 3rd में 3rd तक 3-4 साल की हुई तो आस्ता इसकी ग्रोथ होगी और आस्ता ये बड़ी होके 3rd 4th में स्टैंडर्ड में पहुंची। तो जब स्कूल में पहले हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, उसके बाद फिर वो इधर संत बाल योगेश्वर में भेजा। तो उसको हमारे घर वाले जो है बोलने लगे आप बहुत गलती कर रहे हो, जो लड़कियों को नीचे भेज रहे हो कि जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाएंगे, इसलिए आप नीचे मत जाओ। हमने फिर भी हार नहीं मानी। हमने सोचा कि मैं अपनी लड़की को अच्छी जगह पे बचाऊँगा, तो जो कि वो अच्छा स्कूल मिलेगा और अच्छी सोसाइटी मिलेगी, अच्छी कंपनी मिलेगी, तो ही बच्चा आगे पहुंच सकता है। इसलिए अब दिन जी तरक्की करने लगी और अब आज 8 तक पहुंची और हर साल 1st और 2nd 3rd में। जैसे कि मेरी बेटी ने किसमें कितना है दम में योगा कंपटीशन में भाग लिया, उसके 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, अब फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं भगवान से दुआ करता हूं मेरी बेटी फाइनल जीत के आए, हमारे गांव का, हमारे परिवार का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे।
नमस्कार, मेरा नाम सोमा देवी है। मैं एक टीचर हूँ, मजदूर सदरोता की रहने वाली हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। संस्कृति जो है वो मेरी दूसरी बेटी है। उसको बचपन से ही योगा का बहुत शौक है। वो सुबह शाम प्रैक्टिस भी करती रहती थी। अपने उनके स्कूल में भी योगा के कंपटीशन होते रहते हैं, वो उनमें भाग लेती रहती है और उनमें जीतती रहती है। और पढ़ाई में भी अच्छी है। स्कूल में भी 3rd 4th पोजीशन लेती ही रहती है वो। और उसका स्कूल में बिहेवियर बहुत अच्छा है। स्कूल में ही नहीं बल्कि घर में भी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। सभी के साथ वो बड़े ही अच्छे ढंग से बात करती है, बड़ों से भी और छोटों से भी। पहले तो उनके दादू उनके साथ रहते थे, वो अकेली ही रहती थी। खुद अपनी चोटियाँ बनाती थी, अपने लिए टिफ़िन पैक करती थी, फुलके भी बनाती थी। लेकिन अब 1 साल से हमें एक मेरी बूजी की लड़की है, वो हमें मिली हुई है, तो वो अब उनका खाना बनाती है, तो अब वही उनका ख्याल रखती है। फिर भी मेरी बेटियां सारा काम खुद ही करती थी पहले। बहुत अच्छी है। सुबह हम नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो सुबह जल्दी उठती हैं। उनको पता है कि हमने अपना होमवर्क कैसे करना है, लर्न भी करना है जो दिया है। सुबह शाम पूजा भी करनी है, क्योंकि मैंने उनको बोला कि सुबह शाम रोज पूजा करनी है। वो सारा काम जो है वो खुद ही करती हैं। पहले तो मेरी बड़ी बेटी थी, उसके बाद छोटी बेटी हुई, तो उसके पापा बहुत दुखी हुए कि मेरे घर में बेटी हो गई। लेकिन मैंने कोई दुख नहीं मनाया इसका। तो फिर उसके बाद हमारे घर में तीसरी भी बेटी हुई। सभी कहने लगे इनकी बेटियां हैं। तो मैंने भगवान से आगे एक ही प्रे की, ये भगवान मेरी बेटियों को इतनी अच्छी बुद्धि देना कि वो उन्हें मेरा और मेरे पापा का नाम रोशन करे। अब मेरी बेटी ने किसमें कितना है दम योगा कंपटीशन में भाग लिया था, तो उसमें मेरी बेटी ने 4 राउंड जो है वो प्ले कर लिए हैं और अब उसका फाइनल राउंड है, सिलेक्ट हो गई है वो। अब मैं भगवान से, माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी जो है वो फाइनल राउंड भी जीत के आए, गांव का और अपने मम्मी पापा का और अपने स्कूल का नाम रोशन करे। फिर एक दिन KKHD के टीम मेंबर्स हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमको बताया KKHD शो एक मल्टी टैलेंट शो है। इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पे दिखा सकता है। मेरा भी एक सपना था कि मैं खुद को टीवी पे लाऊं और अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाऊं। फिर मैंने KKHD का योगा में फॉर्म फिल किया। मेरा 1st और 2nd राउंड बिलावर में हुआ, 3rd और 4th राउंड कठुआ में हुआ। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप मैंने 4 राउंड क्लियर करे। अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं ग्रैंड फिनाले में जीत के आऊँ, फिर अपने पेरेंट्स, अपने स्कूल और अपने विलेज का नाम रोशन करूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे मम्मा पापा और पूरी फैमिली का, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज मेरे मम्मा पापा और फैमिली के कारण ही फाइनल में पहुंची हूँ। आई होप मैं फाइनल में ज़रूर जीतूँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा। थैंक यू KKHD।